Hello everyone, welcome back. Welcome to the Sage Group. Today's our subject is water resource engineering. The topic is water losses in canal. In previous, we have discussed about canal and types of canal. And today's our topic is water losses in canal. Now the content is introduction, causes of water losses, losses due to evaporation, losses due to percolation, and losses due to transpiration. Method to reduce water losses, and last one is conclusion. Now, water losses in canal. The canal system designed and constructed transport water from source like river to farmer field, but it has to take care about canal water supply with a minimum amount of water loss. Water losses can seriously reduce the efficiency of water delivery to field. Water may be lost by seepage, leakage or both. तो वाटर लॉसेस एक बहुत बड़ा फेलियर है हम लोगों के लिए। यदि हम इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन पर्पस के लिए यदि वाटर किसी भी चैनल से या कैनाल से हम मूव करा के लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यदि वाटर लॉसेस होता है तो हमें 100% एफिशिएंसी हमें फील्ड पे नहीं मिल पाती ड्यू टू वाटर लॉसेस। तो बीच में ही कहीं पे वाटर लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब वाटर लॉसेस किन कारणों से होते हैं? इट मे बी सीपेज और लीकेज और यू कैन और एवोपरेशन। तो एवोपरेशन के कारण भी वाटर लॉसेस होता है और सीपेज के कारण भी वाटर लॉसेस होता है। The canal water try to seep into the soil. Moreover, the canals are exposed to the atmosphere at the surface. The water also goes to the atmosphere in the form of vapor. The losses in irrigation canal are mainly there are mainly four types of losses. First one is evaporation losses. Second one is absorption losses. Third one is percolation or you can say seepage losses. And last one is transpiration losses. तो जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि कैनाल में वाटर लॉसेस हमारी क्रॉप को ग्रोथ जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। तो हमें कहीं ना कहीं कैनाल से वाटर लॉसेस को बचाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को जो फील्ड में एफिशिएंसी 100% मिलेगी। तो इसके लिए पहले समझना ज़रूरी है कि कितने टाइप के लॉसेस होते हैं और इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो वाटर लॉसेस ड्यू टू एवापोरेशन, ड्यू टू percolation and due to transpiration through the weeds and the vegetation on the bank of the canal. Now, first one is losses due to evaporation. Losses due to evaporation. The losses of water through evaporation depend upon various factors like temperature, velocity of wind, and cloudiness. So, temperature is the main factor. The rate of evaporation is directly proportional to the temperature. तो जो रेट ऑफ evaporation होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। यदि आप बात करें समर सीजन की तो समर सीजन में टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने के कारण एवोपरेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर बात करें रेनी सीजन की तो वहाँ पे टेम्परेचर की जो स्केल है वो डाउन होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है और कम टेम्परेचर के कारण एवोपरेशन वहाँ पे बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है इन द समर
Summer season in India, the rate of evaporation is more, and during rainy season, the rate of evaporation is less. Also, winter season, the rate of evaporation is very less. Now, losses due to percolation, permeability of the soil in the bed and on the bank of the canal. The depth of water in the channel, velocity of the flow, amount of the silt, sorry, यहाँ पे silt गलत लिखा हुआ है. Silt in the water, temperature of the water and age of the canal, the depth of the ground water. These are main factor. It is depend on percolation depend on these factor. Losses due to transpiration. There is a little losses of water through the plants, vegetation, and the weeds on the bank of the channels due to transportation. तो यहाँ पे लॉसेस की जो वैल्यू होती है बहुत ही कम होता है, लॉसेस बहुत यहाँ पे कम होता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. ये किसके कारण होता है? प्लांट्स वेजिटेशंस के द्वारा. इनके द्वारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो ग्रोथ कर जाते हैं. आपने देखा होगा किसी भी कैनाल के साइड में कुछ पौधे पेड़ उग जाते हैं जो कैनाल से ही वाटर को एब्जॉर्ब करके इनका ग्रोथ होती है. तो यदि हमको इसे लॉसेस को हटाना है तो हम इनको जो वेजिटेबल्स है या फिर कुछ पेड़ पौधे हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा वहां से. यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय कीपिंग द बैंक क्लीन फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन एंड वीड्स. ओके. Here the methods to reduce water losses. The most important is canal lining. Canal lining से वाटर लॉसेस को बहुत अधिक मात्रा में रोका जा सकता है सीपेज होने से. कैनाल लाइनिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ. सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कैनाल का सेक्शन है. तो इस कैनाल के सेक्शन में जब आप इसको एक्सकवेट करते हैं तो यहाँ पे जो एक ग्राउंडीनेस होता है, ग्राउंड रहता है, इस ग्राउंड को हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट और प्लास्टर हम इसको प्लास्टरिंग कर देते हैं, है ना. ये वाली पूरी सरफेस क्या हो जाती है कंक्रीटिंग से या प्लास्टर से इसको हम ढक देते हैं, जिससे क्या होता है ग्राउंड जो अर्थ सरफेस होती है उसमें डायरेक्टली वाटर फिल नहीं होता और सीपेज होने से बच जाता है. तो इसको हम बोलते हैं कैनाल लाइनिंग. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप्स ऑफ canal. First one is line canal and second one is unlined canal. So this one is the line canal example. Line that means यहाँ पे एक प्लास्टर आप अप्लाई कर देते हैं कंक्रीट का या फिर किसी भी मटेरियल का, जिससे क्या होता है वाटर लॉसेस होना कम हो जाता है. एंड सेकंड मेथड इज monitor and observe and keeping the bank clean from the growth of the vegetation and weeds. तो मॉनिटर, इसको मॉनिटर बार बार आप देखते रहें, मॉनिटर करते रहें कि जो इनके साइड बैंक है या साइड्स इनकी है तो यहाँ पे अनवांटेड पेड़ पौधे ना ना ग्रो कर पाए, तो इनको हमको रिमूव करना पड़ेगा. तो ये हुआ वाटर लॉसेस को रोकने के कुछ मेथड्स. इस लेक्चर में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर वाटर लॉसेस इन कैनाल, types of water losses in canal. There are three types of losses in canal.
and method to reduce water losses. Thank you. If you have any query, please comment in comment section. I will solve it. And next lecture जल्दी लेके आते हैं. Thank you so much.